Hello everyone, this is Prerna Sudan again. I hope you saw my last video, Introduction of Python Part 1, and today we'll be continuing with Part 2. One thing which I forgot to mention, that after watching the video or during the video, if you have any question, if you want to ask anything, you can ask me in the messages, through the messages. Okay, I'll definitely solve your queries. एंड आई विश कि आप सबको मजा आ रहा है, आप लर्न कर रहे हैं, अच्छे से सीख पा रहे हैं मेरे साथ. I got a feedback through some known people that I should be speaking in Hindi also, but it is a little difficult for me, but I'll try. मैं कोशिश करूंगी कि मैं बीच बीच में थोड़ा सा हिंदी में भी बोलूं, though I speak very easy language so that you people can understand it in a better way. But okay, I'll try from this video onwards. Okay, so let me start today's session. Okay, so this is Introduction to Python Part 2. In my last video, I explained you about what is Python. It's two different modes, that is interactive mode and script mode. Data types, mathematical operator, comparison operators, variables, assigning values to a variable. So I told you so many things. So we'll take further from there, and side by side we will keep repeating and revising also things which we did on in the first video. Okay, I hope you all will like it and understand it. Now today's class will start with print function. आप देखेंगे प्रिंट के साथ मैंने दो राउंड ब्रैकेट्स लगा रखे हैं. जब हम किसी वर्ड के साथ ये दो राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब है इट इज अ फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो जब मैंने लिखा प्रिंट और दो ब्रैकेट लगा दिए तो इसका मतलब है कि हम प्रिंट फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, so print function in Python, basically it prints the specified message on the screen or on other output devices. Now I have used the word output devices. Let me explain you quickly. We have two types of devices in computer. One is input device, one is output device. Input means the devices which helps us to feed data or to give data to the computer. जैसे हम कीबोर्ड से अपनी बात कंप्यूटर को बोलते हैं, हम माउस से अपनी प्रेफरेंसेस को क्लिक करके कंप्यूटर को बताते हैं हम क्या करना चाहते हैं, तो ये हमारी इनपुट डिवाइसेस होंगी. एंड आउटपुट डिवाइसेस जहां पे हमें नजर आता है, लाइक मॉनिटर. ओके, मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस बिकॉज वी कैन सी देयर व्हाट इज हैपनिंग, हमें नजर आता है. मॉनिटर गिव्स अस आउटपुट इन सॉफ्ट फॉर्म, ओके, सॉफ्ट कॉपी. और अगर वही आउटपुट हम प्रिंटर पे ले लें तो दैट गिव्स अस आउटपुट इन hard copy. Okay, so here we are talking about print function. So basically the function of print statement is to give us output either in soft copy or in hard copy. In for both the purposes we use print function. Now the message can be string, int or float. आप किसी भी तरह का मैसेज प्रिंट कर सकते हैं. स्ट्रिंग का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, स्ट्रिंग मतलब ऑल द अल्फाबेट ABCDEF, ऑल द अल्फाबेट फ्रॉम A to Z. इंट मतलब ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, 10, 15, 25, 1000, 1 lakh, whatever. Okay, all the numbers are int type of data types. Then float value is all the decimal numbers like 5.5, 2.5, 25.9, all the decimal numbers are float number. So we can print all these numbers with the help of print function. Okay, now syntax. Again, I have written another word. What is syntax? Syntax is basically the way to write a command. आप किसी कमांड को किस तरह से लिख सकते हो, वो जो एक की फ्रेम होता है या एक जिसको बोलते हैं डाई टाइप, डाई बन गई तो फिर आप उससे बार बार उस चीज को कर सकते हो. तो बेसिकली सिंटेक्स इज द वे टू राइट अ कमांड. लाइक मैंने यहाँ प्रिंट का सिंटेक्स लिखा है, देखो आप समझ सकते हो या नहीं.
You have to write print. You have to give one bracket. You have to feed some data into the print, and you have to close the bracket. Okay. So this is the syntax of the print. Let us take one example. Suppose I want to print a string element. Now, what is a string element again? All the alphabets A, B, C, D. इसको हम string बोलते हैं. तो अगर मुझे string से इसे print करना है, तो ये जो ट्रिपल ग्रेटर देन साइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट. इसे इट इज पाइथन प्रॉम्प्ट. ये हमको पाइथन की इंटरैक्टिव विंडो में मिलता है. ठीक है, ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो, ये हमारी पाइथन की इंटरैक्टिव विंडो है. और आप ये देखो, ये जो स्क्रीन पे 3 ग्रेटर देन साइन है, ये हमारा प्रॉम्प्ट है. तो प्रॉम्प्ट पे हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स इंडिया. मैंने इसमें डबल कोट्स क्यों लगाए हैं? यस, करेक्ट. मैंने आपके लिए हैश डाल के लिखा है. We use codes to print a string value. अगर आप कोई string value print करना चाहते हो तो आपको codes लगाने पड़ेंगे. Now codes can be double or single. देखो, मैंने यहाँ आपके लिए मेंशन किया है. यहाँ पे मैंने इसमें जहां मैंने लिखा है इंडिया, यहाँ मैंने डबल कोट्स लगाए हैं. और करके मैंने एग्जाम्पल में शो किया है कि अगर आप प्रिंट इंडिया करना चाहते हैं तो सिंगल कोड्स भी यूज कर सकते हैं. ये दोनों कमांड्स बिल्कुल करेक्ट हैं. आप चाहे प्रिंट डबल कोट्स में इंडिया लिखें ब्रैकेट में, चाहे आप प्रिंट सिंगल कोड में इंडिया लिखें ब्रैकेट में, बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट. इसको हम जल्दी से यहाँ पे भी करके भी देख लेते हैं. एक बात याद रखेंगे, सारा कुछ हमने किस में लिखना है? स्मॉल लेटर्स में लिखना है, बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. इफ यू विल राइट एनी अल्फाबेट इन कैपिटल, सपोज आई राइट P कैपिटल, प्रिंट ब्रैकेट इंडिया. अब मैंने सारी कमांड बिल्कुल ठीक लिखी है. मैंने प्रिंट लिखा, ब्रैकेट लगाया, कोड्स लगाया, डेटा लिखा, कोट्स बंद किया और ब्रैकेट बंद किया. इफ आई प्रेस एंटर, ओ इट हैज गिवन मी एरर. वो बोल रहा है डिड यू मीन प्रिंट. और ये देखो, यहाँ पे उसने मुझे छोटा करके प्रिंट दिखाया है कि क्या आपका मतलब स्मॉल PRINT से था. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. हमको ये ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, दोबारा से इस कमांड को लिखूंगी और अब मैं प्रिंट स्मॉल में लिखूंगी कोट्स इंडिया, कोड्स बंद. आप कोड्स के अंदर कैपिटल में लिखो, स्मॉल लिखो, कुछ मीनिंगफुल चीज लिखो, कुछ मीनिंगलेस चीज लिखो, इट डजंट मैटर. Python is not going to execute what is written inside the code. Okay, for Python it is data which you have provided it. Okay, तो वो उसको उसी तरह से डील करेगा. Now if I press enter, तो ये देखो उसने प्रिंट कर दिया इंडिया. ठीक है, तो हम कैसे प्रिंट करते हैं? हम लिखते हैं प्रिंट स्मॉल में, फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम कोड्स लगाते हैं इफ वी आर राइटिंग स्ट्रिंग वैल्यू. फिर हम वो स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं, फिर हम कोड्स को बंद करते हैं और फिर हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं. दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट. नॉट ओनली दिस, not only string, we can print numbers also. Now, as I told you in my last class, we have two types of numbers. One is integer type, one is float type. We can print both type of numbers. And one thing which you have to keep in mind, with both type of numbers, we do not put codes. Okay, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा print, ब्रैकेट में मैंने लिखा 333 और मैंने ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दिया, उसने प्रिंट कर दिया. ठीक है, अब मैंने फिर से लिखा प्रिंट कोड्स 33 कोड्स और ब्रैकेट बंद, एंटर. इसने मुझे इस बार भी कोई एरर नहीं दिया. क्यों नहीं दिया इसने मुझे एरर? इसने मुझे एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने सिंटैक्स बिल्कुल ठीक लिखा है. लेकिन अब इन दोनों 33 और 33 में क्या फर्क है कि जो मैंने पहले 333 लिखा है, पाइथन के लिए वो क्या है? नंबर टाइप वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर है. लेकिन जो बाद में मैंने 33 लिखा है, कोड्स में लिखा है, पाइथन के लिए वो क्या है? स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है. इसको मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी इससे क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, एक फ्लोट टाइप वैल्यू भी प्रिंट कर लेते हैं 34.7, एंटर. सॉरी, इट हैज प्रिंटेड 34.7 for me. Okay, like in PPT
In the example, I have written 25.5. So it has printed 25.5 for me. Okay. Next. Now it was, if you are printing one value, we printed India, and then we printed 333 or 33 or 34.7. But what if we want to print more than one thing with print command? Can we do that? क्या हम एक ही print statement के साथ एक से ज्यादा चीजें print कर सकते हैं? Yes, हम कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे print bracket, और जो भी पहली चीज हमको लिखनी है, सपोज मुझे लिखना है हाई कोड्स में, ठीक है, फिर मेरे को दूसरी चीज लिखनी है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट अ कॉमा. Comma is the separator which separate two types of data or two types of things in print. अब मैंने लिखा हाई, और फिर मैंने लिखा 45, फिर मैंने दोबारा से कोट्स डाला, फिर मैंने लिखा दिस इज माय नंबर, और कोट्स डाल के बंद कर दिया. ठीक, आपने देखा मैंने कैसे दिया कमांड. मैं ये स्क्रीन थोड़ी सी आपके लिए बड़ी करना चाह रही हूँ ताकि आपको कमांड एक ही बार में पूरी नजर आए. मैंने लिखा प्रिंट ब्रैकेट, फिर मैंने कोड्स में लिखा हाई. Why I wrote that in quotes? Because it is a string type of value. फिर मैंने कॉमा डाला because comma is a separator जो दो चीजों को सेपरेट कर देगा. ठीक है, फिर मैंने लिखा 45 में मैंने कोड्स नहीं डाले बिकॉज इट इज एन इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू लिखने के लिए कोड्स लिखने की जरूरत नहीं होती. फिर मैंने दोबारा कॉमा डाला टू सेपरेट इट फ्रॉम द अदर डेटा टाइप. ओके, फिर मैंने कोड्स लगा के लिखा दिस इज माय नंबर. इसको मुझे कहीं सेपरेट नहीं करना था, मैंने सारा एक साथ लिख दिया और कोड्स लास्ट में लगा दिया. ठीक है, और अगर मुझे लगता है कि मैं एक और कॉमा लगा के 2.5 एक फ्लोट वैल्यू भी लिख दूं तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा. एंड देन आई प्रेस एंटर, तो उसने सेम सब कुछ मेरे लिए प्रिंट कर दिया है. हाई 45, दिस इज माय number and 2.5. Okay, so I can print multiple objects, more than one object using print command. I hope you have understood. At this point take a pause करो वीडियो को, और अभी के अभी ये जो मैंने कराया है आपको इसके अपने हाथ से करके देख लो. ओके, सो आई होप आपने अच्छे बच्चों की तरह उसको करके देख लिया होगा. अभी तक आपने देखा कि हमने प्रिंट के साथ एक एक लाइन प्रिंट की है. ठीक है, अगर मुझे एक से ज्यादा लाइंस प्रिंट के साथ प्रिंट करनी है तो मैं वो कैसे कर सकती हूँ. ठीक है, मान लो मुझे 3 लाइंस प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट कोड्स हाई कोड्स बंद ब्रैकेट बंद, फिर से मैं लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट, फिर से कोड्स, फिर मैं लिखूंगी हेलो कोट्स ब्रैकेट बंद. दिस वे. पर मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ हाय हेलो ये एक साथ प्रिंट हो, मुझे एक ही बार लिखना पड़े. कंप्यूटर का फायदा ही क्या अगर हमको चीजें बार बार लिखनी पड़े, मुझे प्रिंट बार बार लिखना पड़े. मान लो मुझे 10 लाइंस प्रिंट करनी है तो मैं बार बार 10 टाइम प्रिंट लिखूं. व्हाट इज द फन इन दैट? नहीं, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है. मैं इसको कैसे कर सकती हूँ? आई कैन यूज ट्रिपल कोड्स फॉर दिस पर्पस. ठीक है, मैं लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट, मैं या तो सिंगल कोड ऐसे 3 टाइम्स डाल दूं. ठीक है, और फिर मैं लिखूं हाई, फिर मैं एंटर प्रेस करूं तो देखो प्रिंट नहीं हुआ हाई, बल्कि जो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, ये जो ग्रेटर देन प्रॉम्प्ट है, इसके नीचे 3 डॉट्स आ गए. इसका मतलब द वर्क इज इन कंटिन्यूएशन, अभी मेरा काम चल रहा है. ठीक है, और अब मैंने लिखा यहाँ पे हेलो, फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया, फिर मैंने लिखा हाउ आर यू. ओके, और यहां पे मैंने 3 सिंगल कोट्स बंद करके ब्रैकेट बंद कर दिया. केयरफुली वॉच दिस कमांड अगेन. मैंने लिखा प्रिंट, यहाँ पे देखो मैंने लिखा प्रिंट, फिर मैंने 3 सिंगल कोट्स डाले 1 2 3, फिर मैंने लिखा हाई, फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट लाइन. ओके, फिर मैंने लिखा हेलो, फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया, फिर मैंने लिखा हाउ आर यू. ओके, हाउ आर यू मैंने लिख दिया. नाउ आई विल प्रेस एंटर. एज सुन एज आई विल प्रेस एंटर, आप देखोगे कि जो मैंने लिखा था वो 3 लाइंस में प्रिंट हो गया और उसके बाद वापस से प्रॉम्प्ट आ गया. ओके,
अगेन आई विल से कि यहाँ पे पॉज लो और मुझे दिखाओगे तो कैसे, पर आप एक बार ही इसको अपने आप से करके देखो, प्रिंट से मल्टीपल लाइन। एक बार डबल कोट से भी करके देख लेते हैं। मैंने लिखा प्रिंट 3 डबल कोट्स, नाउ अगली लाइन में प्रैक्टिस, फिर अगली लाइन में योरसेल्फ, अगेन 3 कोट्स एंड ब्रैकेट। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपने सिंगल कोट से शुरू किया है तो आप सिंगल कोट से ही क्लोज करोगे, मतलब 3 सिंगल कोट्स दिए हैं तो 3 सिंगल कोट से क्लोज करोगे। बट इफ यू आर यूजिंग 3 डबल कोट्स देन यू विल हैव टू क्लोज विद द 3 डबल कोट्स। आप इसको वाइसे वर्सा नहीं कर सकते कि सिंगल से शुरू किया तो लास्ट में डबल बंद कर दिया, एक ही चीज करेंगे, ठीक है। एंड प्रेस एंटर, द मोमेंट यू विल प्रेस एंटर यू विल गेट द रिजल्ट। I hope it is clear to you. Okay, so now take a pause and practice it yourself. So I hope you must have practiced. I'm telling you 2 more things. Suppose you want to write 1 print command only. आप एक ही print command लिख रहे हो, लेकिन आप चाहते हो फिर भी result 2 lines में आए बिना 3 कोड्स डाले, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको /n कमांड, न्यू लाइन करेक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट सिंगल कोट्स और डबल कोट्स वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। अब मैंने लिखा माई सेल्फ लिख के मैंने स्पेस दिया। अब मैं बैकस्लैश यूज कर रही हूं। मैंने आपको कल जब ऑपरेटर्स कराए थे तो मैंने आपको बोला था एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक बैकवर्ड स्लैश होता है। फॉरवर्ड स्लैश वो होता है जो हम डिवीजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश होता है क्वेश्चन मार्क के नीचे वाली की पे जो होता है, जिसे हम डिवीजन के लिए यूज करते हैं या फ्लोर डिवीजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बैकवर्ड स्लैश होता है जो पी के साथ आपके 2 ब्रैकेट वाली कीज हैं उनसे जस्ट नेक्स्ट बैक स्लैश होता है, ठीक है। बैकवर्ड स्लैश को हम यूज करते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग में, हम बैक स्लैश डाल के लिखते हैं n फॉर नेक्स्ट लाइन, देन गैप देके माई सेल्फ प्रेरणा सूदन एंड आई विल क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सिंगल प्रिंट लिखा, ब्रैकेट लगाया, कोट्स डाला, फिर मैंने एक वर्ड या डेटा जो भी मैं लिखना चाहती थी मैंने लिखा, फिर मैंने /n लगाया और फिर मैंने बाकी का लिख दिया, ठीक है। नाउ आई विल प्रेस एंटर। तो आप देखो माई सेल्फ ऊपर वाली लाइन में आया है और प्रेरणा सूदन नेक्स्ट लाइन में आया है। एक बात और नोट करो कि जो प्रेरणा सूदन है वो माई सेल्फ के एकदम नीचे नहीं आया, थोड़ा सा गैप देके आया है। तो अगर कहीं आपको ऐसा काम करना हो पाइथन में, आप चाहते हो कोई ऐसी प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि पहले एब्रिविएशन आए फिर उसकी फुल फॉर्म आए, ठीक है, तो वहां पे ये काम बड़ा ब्यूटीफुली आप कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा प्रिंट ब्रैकेट और लिख दिया मैंने CU, ठीक है, कोड्स, फिर मैंने लिखा /n, फिर मैंने लिख दिया, मैंने आप देखो क्या किया, मैंने यहाँ कोड बंद कर दिया जो मुझे नहीं करना था, कंट्रोल यूनिट। अब यहाँ कोड बंद करो और एंटर प्रेस कर दो, तो आप देखो CU ऊपर आ गया और CU की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट नीचे आ गई, ठीक है। आई एम टेकिंग अनदर पॉज एंड आई एम आस्किंग यू टू pause the video here and start practicing on your own. I hope आपने कर लिया प्रैक्टिस। एक और आपको एक और कमांड आपको बता रही हूं, एंड, ओके। हम एक और पैरामीटर यूज कर सकते हैं एंड प्रिंट के साथ। मान लो आप चाहते हो जो भी लाइन आप लिख रहे हो उस लाइन के एंड में कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कुछ चीज प्रिंट हो, तो आप उसको सिंपली एंड से कर सकते हो। कैसे, हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट सिंगल कोड्स बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, ओके। और उसके बाद आप सिंगल कोड्स को बंद कर दोगे, फिर आप कॉमा लगा के सेपरेट करोगे, ठीक है। द कमांड इज एंड
एंड इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू के बाद आप सिंगल कोट्स में जो भी दे दोगे, सपोज मैं यहाँ ये हैश 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 दे रही हूँ, सिंगल कोट्स बंद और ब्रैकेट बंद और एंटर, तो जो भी आप एंड के बाद लिखोगे कोड्स में वो सेम चीज आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर से एक पॉज ले यहाँ पे और इसको प्रैक्टिस करके देखो अपने आप। ठीक है, आई अज्यूम कि आपने वो पॉज ले लिया है, आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया है और आप इसे समझ गए हैं। नाउ सपोज यू वांट टू प्रिंट डेट, ठीक है, और यू वांट, ये तो हमने पढ़ा कि एंड में प्रिंट कर देगा, लेकिन क्या क्या ऐसा हो कि आप हर चीज के बाद, हर डेटा के बाद आप बीच में कुछ प्रिंट करना चाहते हो, सिंपली जैसे डेट, आज जैसे डेट है 16 मई 2023, तो अगर आप हर डेटा के बाद, हर वैल्यू या एलिमेंट के बाद कुछ प्रिंट करना चाहते हो, फॉर दैट वी यूज द कीवर्ड सेप, SEP। ओके, वो हम कैसे यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रिंट ब्रैकेट कोड्स। अब आप जो लिखना चाहते हो, नहीं, पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना, तभी तो हम प्रिंट करेंगे, और अगर हम डिफाइन ना करें, हम सीधा लिख दें, तो हम सीधा भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिखा 16 कॉमा में कॉमा 2023, ठीक है, कॉमा सेप इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में हाइफन और कोट्स बंद। ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा प्रिंट, फिर मैंने ब्रैकेट डाला, फिर मैंने एक इंटीजर वैल्यू लिखी, फिर मैंने कॉमा से उसको सेपरेट किया, फिर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू लिखी MAY में, उसको मैंने सिंगल कोट्स में लिखा, फिर मैंने कॉमा लगा के उसको सेपरेट किया, फिर मैंने 2023 लिखा जो इंट वैल्यू है, इसलिए मैंने कोट्स नहीं लगाया, फिर से मैंने कॉमा डाला, फिर मैंने लिखा सेप, SEP सेप। सेप हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, पर वो कीवर्ड है, इसलिए वो कोड्स में नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, फिर मैंने लिखा सेप इज इक्वल टू हाइफन, हाइफन को मैंने कोड्स में लिखा, क्योंकि नंबर्स के अलावा आप जो भी लिख रहे हो, जो भी चीज एज इट इज प्रिंट करना चाहते हो, उसको हम कोड्स में लिखते हैं। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट बंद। नाउ इफ यू प्रेस एंटर, तो यू विल सी दैट इट इज प्रिंटिंग 16 हाइफन में हाइफन 23। मैं हाइफन की जगह स्लैश लगाती अगर, ठीक है, इसको मैं और टाइपिंग से बचने के लिए एक काम और कर सकती हूँ, पर आप नहीं करना, आप बार बार टाइप करोगे तो आप सीखोगे। ठीक है, मैं हाइफन की जगह स्लैश भी यूज कर सकती हूँ, हम डेट में स्लैश भी यूज करते हैं ना, एंटर, तो अब आप देखो 16/May/23 हो गया। ठीक है, इस प्रोग्राम को भी समझो, मैंने इसमें क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 16 स्टोर करा दिया, मैंने B एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने मे स्टोर करा दिया, मैंने C एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 23 स्टोर करा दिया। ठीक है, और प्रिंट में यहाँ पे जैसे मैंने 16 लिखा है, उसकी जगह वहां मैंने क्या लिख दिया, A। अब आप एक चीज पे ध्यान दो कि मैंने A में डबल कोट्स नहीं लगाया है। जब कोई चीज मैं डबल कोट्स लगा के लिखती हूं, तो प्रिंट उसको एज इट इज प्रिंट कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखती हूं A इज इक्वल टू 20, मैंने लिखा स्मॉल a इज इक्वल टू 20, यानी 20 एक वैल्यू है जिसे मैंने A में स्टोर किया है। अब मैं लिखती हूं प्रिंट ब्रैकेट कोड्स में A और एंटर, अरे इसने A प्रिंट कर दिया। अब मैं दोबारा लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट बिना कोड्स के A, अब उसने क्या प्रिंट कर दिया, 20 प्रिंट कर दिया। तो ये आपको चीज समझनी है, whatever you write within double quotes, print statement will print that thing as it is, वो उसको as it is print कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई चीज बिना डबल कोट्स के, कोई चीज मतलब वेरिएबल नेम, अगर आप कोई वेरिएबल नेम बिना कोट्स के लिखोगे, तो वो उस वेरिएबल नेम की बजाय उसके अंदर जो वैल्यू या वो जिस वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा है, उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, पर मैं इसे अभी आगे और समझाऊंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको अपने हाथ से करके देख लो। नाउ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ये मैंने आपको जस्ट अभी समझाया है। ठीक है, मैंने कल आपको जब कंपैरिजन ऑपरेटर कराए थे,
लास्ट वीडियो में जब भी कराए थे तो मैंने आपको बोला था कि डबल इक्वल टू साइन हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है। हम सिंगल इक्वल टू क्यों नहीं यूज करते, आज बता रही हूँ। सिंगल इक्वल टू हम यूज करते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 16 किया, यानी मैंने 16 एक वैल्यू है जिसको असाइन कर दिया a को, ठीक है। तो इज इक्वल टू जो है इट्स अ सिंबल, इट इज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो है वो वैल्यू है और x एक वेरिएबल है, और दोनों के बीच में जो इक्वल टू है वो असाइनिंग ऑपरेटर है। सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होता है, हाउ टू राइट अ कमांड। तो हाउ टू राइट अ कमांड में सबसे पहले क्या लिखा है, वेरिएबल नेम, यानी आपको पहले वेरिएबल नेम देना है। फिर लिखा है इक्वल टू, यानी आपको इक्वल टू का साइन लगाना है। फिर लिखा है वैल्यू, यानी आपको उसमें कोई वैल्यू असाइन करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी लिखा था a इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल में लिखा x इज इक्वल टू 4, तो x इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। x कैसा वेरिएबल है, इंट टाइप का। क्यों इंट टाइप का है, क्योंकि मैंने उसके अंदर एक नंबर स्टोर किया है, ठीक है। और अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट x, तो प्रिंट x विल स्टोर प्रिंट द वैल्यू विच इज स्टोर इन इट, और इन केस ऑफ पाइथन ऑन विच इट इज पॉइंटिंग, जिस की तरफ वो पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा, तो आउटपुट आ जाएगी 4। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया करके, ठीक। नाउ अब क्या है कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि मैंने लिखा a इज इक्वल टू 20, ठीक है, इंटीजर वैल्यू। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग स्टोर करना चाहूं तो क्या मैं कर सकती हूँ वेरिएबल में, यस मैं कर सकती हूँ। क्या मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा, नहीं मुझे कुछ और नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा x इज इक्वल टू कोड्स में a b c और कोड्स बंद कर दिए और एंटर, ठीक है। और मैंने लिखा x इज इक्वल टू सिंगल कोड में a b c और सिंगल कोड बंद कर दिया और एंटर। बोथ आर करेक्ट कमांड्स, ठीक है। अब अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट में x एंटर, तो इट विल प्रिंट एबीसी फॉर मी, ठीक है। दोनों ही केसेस में एबीसी प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं फ्लोट वैल्यू स्टोर करना चाहूं, मैं फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकती हूँ। मैं लिखूं f इज इक्वल टू 4.5, ठीक है, और फिर मैं लिखूं प्रिंट f एंटर, इट विल प्रिंट 4.5 फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने हाथ से इसको करके देखो, स्ट्रिंग को भी, इंट को भी और फ्लोट वैल्यू को भी। पॉज करो और जल्दी से करके देख लो। आई अज्यूम कि आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई रियली फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग। जब मैं इसको करवाती हूँ बच्चों को भी आई होप मजा आता है। आपने सोचा कि अगर मैं एक वेरिएबल में एक वैल्यू डालूं और मैं उसी वेरिएबल में एक और वैल्यू डाल दूं तो क्या होगा। मान लो ये मेरे पास एक स्पेक्स है, स्पेक्स कवर है, ठीक है। मैं इसमें ये स्पेक्स डाल दूं। अब अगर मैं इसी स्पेक्स में एक और कोई चीज डालना चाहूं, सपोज ये कुछ ऑब्जेक्ट है डालना चाहूं, तो क्या होगा, ये स्पेक्स यहां से हट जाएगा और अब इसमें ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मान लो आपके पास एक बॉटल है, वाटर बॉटल, ठीक है। आप उसमें पानी डाल देते हैं। अब आप उसमें कोई मिल्क या कोई कोल्ड ड्रिंक डालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस पानी को निकाल देंगे और कोल्ड ड्रिंक डाल देंगे। यानी जो चीज आप इसमें सबसे लास्ट में डालोगे अल्टीमेटली इसमें वही चीज रहेगी। इट इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल, है ना। ये भी एक वेरिएबल की तरह है, ये आपकी चीज को स्टोर करती है आपके लिए। सेम वे दिस वेरिएबल बिहेव्स। आप अगर एक वेरिएबल लेते हो, मान लो मैंने यहाँ पे लिया a इज इक्वल टू 55, एंटर, मैंने किया प्रिंट a, तो उसने प्रिंट कर दिया 55, ठीक है। अब मैंने लिखा a इज इक्वल टू कोड्स में x y z, कोड्स बंद, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। आप लोगों ने बताया नहीं मुझे। a इज इक्वल टू कोड्स में x y z और कोड्स बंद, ठीक है। अब अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट
ए, तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, XYZ, जबकि मैंने तो ए में 55 भी स्टोर किया है. You cannot store more than one value in the same variable, just like you cannot store cold drink and water in this single bottle. ठीक है, आप इसमें पानी डालते हो, आपको कोल्ड ड्रिंक डालना है, आपको पानी को निकालना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक डालना पड़ेगा. आपको मिल्क डालना है, आपको कोल्ड ड्रिंक को निकालना पड़ेगा, मिल्क डालना पड़ेगा. यानी सबसे लास्ट में आप इसमें जो डालोगे, जब आप प्रिंट करोगे या जब आप इसको ओपन करोगे, तो वही आपको मिलेगा. ठीक है, आपको लग रहा होगा कि एंटर प्रेस कर दिया इसलिए चेंज हो गया. चलो इसको दोबारा करते हैं. अब मैंने लिखा x इज इक्वल टू 77, x इज इक्वल टू कोड्स PQR, codes 1 and enter. Now I am writing print x. क्या प्रिंट होगा आप बताओ, 77 या PQR? यस, जिन सब ने कहा PQR दे वर करेक्ट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट में जो आप डालोगे वेरिएबल के अंदर, वही उसमें स्टे करेगा. ठीक है, एंड यू कैन नॉट स्टोर more than one value, more than one element in a variable. अगर आपको दो चीजें स्टोर करनी है तो आपको दो अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे. ठीक है, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाया है. ठीक है, मान लो आपने लिखा x इज इक्वल टू 77, फिर आपने लिखा y इज इक्वल टू कोड्स में PQR. तो अब मैंने दो चीजें दो वेरिएबल्स में स्टोर कर दी. अब अगर मैं लिखती हूं प्रिंट ब्रैकेट x कॉमा y, एंटर. y इज नॉट डिफाइंड, फिर आपने मुझे नहीं बताया, मैंने तो x और z लिया था. चलिए, प्रिंट ब्रैकेट x कॉमा z और एंटर. सो इट हैज प्रिंट 77 PQR, जो मैंने डिफाइन किया था. जैसी गलतियां आप करोगे, उन गलतियों को मैं करके एक्चुअली आपको बता रही हूं कि क्या क्या गलतियां होने की संभावना है. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. नाउ, मैंने आपको कल बताया था पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. दिस इज द टाइम टू प्रूव दैट पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. मैंने आपको अभी ऊपर करके दिखाया कि मैंने स्मॉल a लिया, उसमें मैंने एक वैल्यू डाली, फिर मैंने दोबारा स्मॉल a लिया, उसमें मैंने एक वैल्यू डाली, तो प्रीवियस वैल्यू जो है उस पर ओवरराइट कर दिया नेक्स्ट वैल्यू ने. ठीक है, लेकिन अगर आपकी जिद है कि मुझे तो अल्फाबेट ए ही पसंद है, तो हम इसके केस सेंसिटिव होने का फायदा उठा सकते हैं. कैसे, चले करके देखते हैं. हमने लिखा स्मॉल a इज इक्वल टू 22, एंटर. अब मैंने लिखा कैपिटल A इज इक्वल टू, कोड्स में मैंने लिखा XXX और एंटर. ठीक है, अब मैं लिखती हूं प्रिंट स्मॉल a, फिर मैं लिखती हूं प्रिंट कैपिटल A. सो नाउ यू कैन सी कि अगर आप प्रिंट स्मॉल a लिखते हो तो 22 प्रिंट हो जाएगा, और अगर आप प्रिंट कैपिटल A लिखते हो तो XXX प्रिंट हो जाएगा. जैसा मैंने आपको बताया कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, उसके लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए दो अलग अलग चीजें हैं. यानी उसके लिए ये बॉटल, एक बॉटल है और एक जार है. ठीक है, दोनों ए हैं, दोनों कंटेनर हैं, दोनों में आप सामान रख सकते हो, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग है. और अगर इसको मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ प्रिंट ब्रैकेट ए कॉमा कैपिटल ए ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. तो वो एक ही लाइन में उसको प्रिंट कर देगा. मैं अज्यूम कर रही हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है और आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं. ठीक है, नाउ आप डिफरेंट वेरिएबल यूज करके प्रिंट कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ. अभी मैंने आपको ऊपर करके दिखाया. ठीक है, यहाँ पे मैंने x में 5 को स्टोर किया, y में फ्लावर्स को स्टोर किया, और मैंने बोला प्रिंट x प्रिंट y. तो पहले x प्रिंट होगा, फिर y प्रिंट होगा, और अगर मुझे एक ही लाइन में करना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ प्रिंट x कॉमा y, because comma is a separator, it will separate two things. Okay, now assigning a value, it's very important. आप यहाँ पे देखो, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकेंड मैं इसको स्लाइड शो में करके ना आपको बड़ा करके दिखाती हूँ. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने बहुत सारे वेरिएबल ले लिए.
हाँ, मैंने कितने वेरिएबल ले लिए? 3 वेरिएबल ले लिए। मैंने लिया x, y, z. I have taken 3 variable and I am storing single value that is called orange in it. हो क्या रहा है इसको समझते हैं लॉजिक से। मैंने बोला x is equal to y, यानी जो x है वो क्या है? वो y है। y की जो वैल्यू थी वो किस में आ गई? x में आ गई। अब x ये वाला रिमोट बन गया, ठीक है। फिर मैंने बोला z is equal to y, यानी z की जो वैल्यू है वो y में आ गई, यानी अब z मेरा क्या बन गया? z मेरा वाटर बॉटल बन गया। फिर मैंने बोला ऑरेंज इज इक्वल टू z, यानी z की वैल्यू क्या है? ऑरेंज है। सपोज ये ऑरेंज है, चला लो काम इसी से, ठीक है। सपोज ये ऑरेंज है। अब मैंने बोला ऑरेंज इज इक्वल टू z, यानी ऑरेंज की जो वैल्यू है वो किस में आ गई? z में आ गई। अब रिवर्स चलो, ऑरेंज वैल्यू आ गई z में, ये z है। z वैल्यू आ गई y में, यानी y में भी क्या चला गया? ऑरेंज चला गया। y वैल्यू आ गई x में, यानी x में भी क्या चला गया? y चला गया। तो इसका मतलब तीनों वेरिएबल को मैंने एक ही वैल्यू असाइन कर दी, दैट इज ऑरेंज। हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन पाइथन। हमको इसी तरह से लिखना होता है, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये। तो लास्ट में जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू में होते 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 सब में सेम वैल्यू चली जाती है, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको किया प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z, तो एक्चुअल में तीनों के अंदर ऑरेंज प्रिंट हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर नहीं है तो आप मुझसे दोबारा समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया, एक एग्जाम्पल और हम करते हैं। हमने क्या? num1 इज इक्वल टू num2, num2 इज इक्वल टू num3, num3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने 0 वैल्यू ली, उसको मैंने बोला num3 इज इक्वल टू 0, तो num3 में क्या चला गया? 0 चला गया। फिर मैंने बोला num2 इज इक्वल टू num3, num3 में क्या था? 0, तो वो अब किस में ट्रांसफर हो गया? num2 में ट्रांसफर हो गया। फिर मैंने बोला num1 इज इक्वल टू num2, num2 में क्या वैल्यू है? 0, तो वो किस में ट्रांसफर हो गई? num1 में ट्रांसफर हो गई। तो अब num1 में भी 0 आ गया, 2 में भी 0 आ गया, 3 में भी 0 आ गया। तो अब अगर मैं बोलती हूँ प्रिंट num1 कॉमा num2 कॉमा num3, तो फाइनली इट विल प्रिंट ऑल जीरोस फॉर। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मजा आएगा एक बार आप पाइथन करने लगोगे और समझने लगोगे, ठीक। जैसे हम मल्टीपल वेरिएबल्स में सिंगल वैल्यू रख सकते हैं, ऐसे हम मल्टीपल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें इक्वल टू की जगह हम क्या लगाते हैं? सेपरेटर लगाते हैं, यानी ये सब अलग अलग है। अगर मैं बोलती हूँ x कॉमा वाई कॉमा जेड, तो मैं पाइथन को बता रही हूं कि मैंने 3 अलग अलग वेरिएबल लिए हैं। एक लिया है x जो अलग है, y जो अलग है, z जो अलग है, और इज इक्वल टू किसके बराबर है? ऑरेंज, बनाना, चेरी। तो पाइथन इतनी समझदार है कि वो फर्स्ट इधर से वेरिएबल लेगी x और इधर से वैल्यू लेगी ऑरेंज, उसको x में डाल देगी। फिर वो y पे जाएगी, यहां से वेरिएबल लेगी y और यहां से वेरिएबल लेगी बनाना, फिर वो y में डाल देगी। फिर वो वहां से वेरिएबल लेगी z और यहां से वेरिएबल लेगी चेरी, उसको z में डाल देगी। तो x y z इज इक्वल टू ऑरेंज, बनाना, चेरी। कॉमा कॉमा डाल के लिखना है आपने, क्योंकि सारी स्ट्रिंग वैल्यू है तो आप कोड्स लगाएंगे। तो जब आप इन्हें प्रिंट करेंगे, प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z, तो ये तीनों एक एक लाइन में आपके साथ ऑरेंज, बनाना, चेरी इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं, QTY फॉर क्वांटिटी, देन नेम, देन AMT फॉर अमाउंट। ओके, क्वांटिटी, क्वांटिटी के इधर मैंने क्या लिखा? 10। नेम, नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने क्या लिखा? रोज। अमाउंट, अमाउंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने क्या लिखा? 500। ओके, तो जब मैं बोलती हूँ प्रिंट क्वांटिटी, नेम, अमाउंट, तो इट विल प्रिंट फॉर मी 10 रोज एंड 500। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू एंड यू आर एंजॉइंग। अब यहाँ पे एक पॉज लो, लंबा सांस लो और इसको करके देख लो। आई नो एक दिन के लिए कुछ ज्यादा हो गया, पर प्रिंट को एक साथ कवर करना ही ठीक रहता है, ठीक। नेक्स्ट, अब अगर आपको सिंगल ऑब्जेक्ट पास करना है, ये मैं आपको करके दिखा चुकी हूं पहले ही पीछे, कि प्रिंट के साथ आप
ब्रैकेट लगा के कोड्स में जो भी लिखोगे, जितना लंबा भी लिखोगे, वो सारा एक साथ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको टू ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करने हैं तो ये कैसे करेंगे? जैसे आप यहाँ देखो एग्जाम्पल में मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5, यानी x मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 5 वैल्यू डाल दी। अब मैं चाहती हूँ जरा सुंदर तरीके से प्रिंट हो, जैसे पहले प्रिंट हो माई रोल नंबर इज और उसके बाद वो वैल्यू प्रिंट हो। इसको करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5। अब मैं इसको बोलती हूँ प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स माई रोल नंबर इज, स्पेस देती हूँ थोड़ा सा, डबल कोट्स वापस लगाती हूँ, कॉमा देती हूँ और डबल कोट्स में ही लिख देती हूँ x, डबल कोट्स बंद ब्रैकेट बंद, ठीक, एंटर। इसने क्या प्रिंट कर दिया? माई रोल नंबर इज x। क्यों प्रिंट किया इसने x? आई होप यू ऑल हैव गेस्ड राइट। मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई चीज डबल कोट्स में लिखोगे तो वो एज इट इज उस चीज को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रिंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करे तो आपको उसे बिना डबल कोट्स के लिखना होगा, ठीक है। यानी आपको लिखना होगा, यू विल हैव टू राइट कॉमा x without any codes, print bracket codes my roll number is double quotes comma x. Now if you will press enter it will print my roll number is 5। आप देखो मैंने इस के बाद एक स्पेस क्यों दिया है? ताकि इस के साथ बिल्कुल साथ में ना आ जाए 5, थोड़ा सा गैप में आए। यहाँ पे आप कॉलन साइन या हाइफन लगा के भी x को बाद में प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। ये हम क्यों करते हैं? जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए करते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग किसी के लिए करते हैं, यूजर के लिए करते हैं, तो इस तरह की कमांड देने से यूजर को ये समझ आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। अगर ये सिर्फ 5 प्रिंट हो जाता, यानी अगर मैं इसको प्रिंट x ऐसे भी लिख सकती थी, पर अब ये 5 क्या है ये कैसे समझ आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट के बाद कोड्स में एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि ये है क्या, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, तो एटलीस्ट समझ आ जाएगा देखने वाले को कि ये मैं क्या चीज प्रिंट करा रही, ठीक है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ प्रिंटिंग इट लाइक दिस। नाउ मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। अब मैं चाहती हूं कि दोनों की वैल्यूज प्रिंट हो जाएं, तो मुझे फिर से वही करना होगा। मैं लिखूंगी प्रिंट कोड्स द वैल्यू इज, मैंने अब देखो यहाँ पे हाइफन यूज किया है स्पेस की जगह, ठीक है, और मैंने कोड्स बंद कर दिया, यानी हाइफन तक चीज जो लिखी है मैंने वो एज इट इज आएगी। फिर मैंने कॉमा डाल के उस वेरिएबल को यहाँ पास करा दिया, ठीक है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं मैंने यहाँ वेरिएबल को पास करा दिया। वेरिएबल पास करा दिया मतलब वेरिएबल जिस वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा है यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसे कोड्स में नहीं लिखा है। ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर मैंने लिखा प्रिंट द वैल्यू ऑफ b इज, इसको भी मैंने कोड्स में लिखा है, कॉमा डाल के मैंने b को पास करा दिया, यानी जो वैल्यू b में है वो यहाँ पे आ जाए, और मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो आउटपुट कैसे आएगी? द वैल्यू ऑफ a इज 10, द वैल्यू ऑफ b इज 20। तो देखने वाले को एकदम से समझ आ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया नम जिसमें मैंने लिखा 25, ठीक है। फिर मैंने लिखा नेम जिसमें मैंने प्रेरणा को स्टोर करा दिया। फिर मैंने लिखा प्रिंट नम और बाहर लिख दिया नम, यानी मैंने पहले नम को लिखा कोड्स में और इस बार मैंने कॉलन साइन लगा दिया, ठीक। फिर मैंने नेम को भी लिखा कोड्स में और मैंने कॉलन साइन लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने कॉमा डाल के लिख दिया नेम। तो जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो लिखा हुआ आएगा नम कॉलन 25 नेम कॉलन प्रेरणा, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल की वैल्यू को किसी स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करा सकते हैं, ठीक। नाउ एक्टिविटी टाइम। विदाउट एक्टिविटी यू विल नॉट नो कि आपने कितना सीख लिया है। बहुत आसान और सिंपल एक्टिविटी है। You have to store your name, your age,
and your class in 3 variables. आपने 3 वेरिएबल लेने हैं, एक नेम के लिए, एक एज के लिए और एक क्लास के लिए, और आपने उसमें अपनी वैल्यू स्टोर करा देनी है। अपने नाम को भी स्टोर कर देना है, अपनी एज को भी और अपनी क्लास को भी, ठीक है। उसके बाद आपने इन तीनों को प्रिंट करना है और लास्ट में आपने दो नंबर्स 15 और 20 के टोटल को भी प्रिंट करना है, ठीक है। आई एम गिविंग यू 5 minutes, पॉज द वीडियो हियर एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए देखते हैं इसको एक्चुअल में कैसे करना था। वेरी सिंपल एंड आई होप यू ऑल मस्ट हैव अटेम्प्टेड इट करेक्टली। आपने एक वेरिएबल लेना है, मैंने यहाँ पे नेम लिया है, आप n ले सकते हो, NAM ले सकते हो, num ले सकते हो, XYZ कुछ भी ले सकते हो, बस एक वेरिएबल नेम लेना है। वेरिएबल के रूल्स आपको याद है ना, स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नेम में गैप नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल दिया नेम, जिसमें मैंने अमन शर्मा को सिंगल कोट्स में स्टोर करा दिया, ठीक। फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया एज। एक बात और ध्यान रखो बच्चों, जब आप कोई वेरिएबल नेम लेते हो, ऑलवेज टेक अ मीनिंगफुल नेम, क्योंकि आगे चल के जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिखोगे, तो अगर आप XYZ जैसे ऐसी वेरिएबल नेम ले लोगे, तो आगे प्रोग्राम में आपको ध्यान नहीं रहेगा कि X मैंने किस काम के लिए लिया है, Y मैंने किस काम के लिए लिया है, Z मैंने किस काम के लिए लिया है। इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक मीनिंगफुल नेम फॉर द मीनिंगफुल वेरिएबल। जैसे मुझे यहाँ पे एज को स्टोर कराना है, तो मैंने वेरिएबल का नाम क्या ले लिया, एज ले लिया, ठीक है। फिर मैंने वेरिएबल का नेम लिया क्लास, जो कि शायद वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि इट इज अ रिजर्व वर्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास के स्पेलिंग चेंज करने पड़ेंगे, CLAS या CL। मैंने यहाँ पे आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। तो मैंने एक क्लास वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 9 को स्टोर कर दिया। फिर मैंने बोला प्रिंट माय नेम इज, उसको मैंने कोड्स में लिखा, कॉमा डाल के मैंने वेरिएबल पास करा दिया जो कि है नेम। फिर मैंने प्रिंट आई एम, अब आप देखो मैंने यहाँ पे क्या स्टाइल से लिखा, मैंने लिखा आई एम कॉमा एज को मैंने यहाँ बीच में पास करा दिया, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आई एम कॉमा एज, फिर कॉमा डाल के फिर कोड्स में लिख दिया ईयर्स ओल्ड। तो अब जब ये प्रिंट होगा तो कैसे प्रिंट होगा, आई एम 14 years old। ओके, नहीं समझ आया, दोबारा अभी आपको समझा देती हूँ। फिर मैंने लिखा प्रिंट आई स्टडी इन कॉमा, फिर मैंने क्लास को पास करा दिया और फिर मैंने क्लास लिख दिया। तो आज आ जाएगा आई स्टडी इन 9th क्लास। और लास्ट में मैंने बोला प्रिंट द टोटल ऑफ 15 and 20 इज, और कॉमा डाल के मैंने दोनों को ऐड करा दिया। तो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। जल्दी से मैं आपको ये दो चीजों वाला काम करके दिखा देती हूँ। हमने लिखा x इज इक्वल टू 10। अब मैं चाहती हूं मैं लिखूं प्रिंट ब्रैकेट कोड्स माई क्लास, नहीं माई के बाद कोड्स एंड कॉमा, और क्लास से पहले मैं यहाँ पे x पास करा देती हूँ और फिर कॉमा, और फिर इसको मैं कोड्स में डाल देती हूँ। ये मैंने क्या किया समझे, मैंने लिखा प्रिंट, फिर मैंने लिखा कोड्स में माई, तो ये माई एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने लिखा एक्स, एक्स में क्या वैल्यू स्टोर है 10, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा 10, माई 10th। और फिर मैंने कॉमा डाल के क्या लिखा कोड्स में क्लास, तो क्लास एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, माई 10th क्लास, ठीक है। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे, आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखोगे। इस वीडियो को आपको कम से कम 3-4 बार देखने की जरूरत जरूर पड़ेगी, पर आप इस वीडियो को आराम से देखना, इसको पॉज कर करके साथ साथ प्रैक्टिस करना। लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग है पर इतनी आसान नहीं होती है, तो पे अटेंशन, बी केयरफुल। आप अपने क्वेश्चंस और अपने सजेशंस मुझे मैसेजेस के थ्रू दे सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।